Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing the equations of motion और हम graphical derivation पढ़ रहे हैं. 2 equations हमने derive की. अब आज third equation of motion derive कर रहे हैं graphs के जरिए. So we are discussing the equations and equations. The third equation is v square minus u square is equal to 2as. To derive it through the graph, let's plot a graph acceleration. Graph of acceleration, that is graph between velocity and time. It is called the velocity time graph. So on a velocity time graph you have to take two axes, that is x-axis and y-axis. On x-axis we take a time and y-axis पे हम लेते हैं velocity. This is the relationship between velocity and time. This graph showing velocity relationship between velocity and the time, that is what happens to the velocity with the time. कि velocity क्या छ गसान, कसा increase छ गसान या कसा decrease छ गसान, कित कन छ increase गसान with passage of time. This is called velocity time graph. Velocity time graph. और जो velocity time graph में graph बनता है, that gives us acceleration, that is change in velocity. ठीक, हम वही प्लॉट वही वैसा ही एक उसी बॉडी का प्लॉट ग्राफ करेंगे जिस बॉडी का हमने जिक्र किया है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में. द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, इज यूनिफॉर्मली चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक, फिर हम देखते हैं कि एट पॉइंट बी की इसकी वेलोसिटी कितनी बनी हुई है, वो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन वाई एक्सिस. यहाँ से 0 से लेकर इस पॉइंट तक कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी यहाँ पर रीडिंग होगी, दैट विल गिव अस द फाइनल वेलोसिटी v. दिस इज फॉर एग्जांपल पॉइंट c. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी जो पहले इसकी वेलोसिटी थी. सो ओ ए इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u. शाबाश. ए पे b तान वाता कोता टाइम लोग इनसी वेलोसिटी चेंज करा कोता टाइम लोग उसमें इस तरह b पे ब्याक परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस 0 पे 30 यत तो कोता टाइम आसे 1 घंटा आसे 10 मिनट आसे 2 मिनट आसे कोता टाइम आसे. This will give us the time. This OT is equal to O, A, B, C, D. OD is the time. तो सिर्फ हम एक चीज़ यहाँ पर खुद डालते हैं, that is parallel line or perpendicular on BD from point A. ठीक, that it intersects on E. Now we have to derive third equation. मैं यहाँ पे ऐसे short में लिखूँगा. To derive यहाँ लिखेंगे यहाँ पे on a velocity time graph, on a velocity time graph, this is velocity time graph, the distance traveled by a body या by the body, जिसकी हम ये ग्राफ velocity और time, जिसकी हम velocity ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं. The distance traveled by the body in time t, in time t is equal to area enclosed under shabash velocity time एक्सीज. अब जो ये एक्सीज यहाँ पे बनते हैं जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, दैट इज दिस एक्सेलरेशन, इसके अंदर जो ये एरिया आता है, दिस एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम टी, और इट कैन बी रिटन एज डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉडी. यही स्टेटमेंट हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम एक्सिस, दैट इज ए बी इज ओ ए बी डी, ओ ए बी डी. ठीक, विच इज ए ट्रेपेजियम, जो हमने कल भी देखा, विच इज ए ट्रेपेजियम. ठीक, therefore S in area is equal to area of trapezium is equal to sum of parallel sides divided by altitude. Sum of parallel sides divided by 2 into altitude. Area of parallel sides is equal to sum of parallel sides. ये मैं यहाँ पे फिर लिखूँगा. Sum of parallel sides divided by 2 into altitude.
शाबाश। S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे पैरेलल साइड कौन है ट्रेपेजियम में? OA एंड BD, दैट इज OA प्लस BD इज डिवाइड बाई 2 इनटू अल्टीट्यूड क्या है? हाइट, यानी द स्ट्रेट लाइन सेपरेटिंग द टू पैरेलल लाइंस, इट इज OD AE, ये दोनों बराबर हैं, दो में से कोई भी लीजिए, दैट इज OD। शाबाश। S is equal to what is OA? OA is 0 to O. This is initial velocity U. What is BD? BD is equal to CO या OC. OC is V. So हम लिखेंगे BD के बदले V divided by T divided by 2 into what is OD? OD is time। अब ग्राफ में देखिए ये सब वहीं से निकलेगा, ठीक। यहाँ पर हमने देखा है, आप देखिए यहाँ पर S is equal to U plus V divided by 2 into this is equation first, that it is equation first। क्योंकि सेकंड इक्वेशन में T नहीं है, इसलिए यहाँ से T को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन we have what we have V is equal to U plus A into T, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और V minus U is equal to A into T, ये देखिए U ने माइनस U, शाबाश। V minus U डिवाइड बाई A, क्योंकि ये into है, is equal to T, this is the value of T, substitute this value of T in equation first, substitute value of T in equation first we get। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसमें T को बाहर निकालना है, इट इज U प्लस V डिवाइड बाई 2, U प्लस V डिवाइड बाई 2 इंटू, शाबाश, T के वाले क्या लिखेंगे? V माइनस U डिवाइड बाई A, डिवाइड बाई A, क्योंकि ये T के वाले हैं। अब मल्टीप्लीकेशन सिंपली कीजिए, U इंटू V, इट इज U इंटू U, मगर प्लस इंटू माइनस, शाबाश, गो माइनस U इंटू U गो U स्क्वायर। अब V से करते हैं, शाबाश, प्लस इंटू प्लस, प्लस V इंटू V, इट इज V स्क्वायर, V इंटू U, प्लस इंटू माइनस गो माइनस UV डिवाइड बाई 2A, प्लस UV माइनस UV कट, वहाँ पे रहता है S इज इक्वल टू माइनस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाई 2A निमन योर, शाबाश, क्या बन 2AS इज इक्वल टू, ये क्या याद है? माइनस V स्क्वायर, इसे प्लस V स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, माइनस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, graphical way by which we can derive the third equation of motion. Hope you understand. Thank you for watching.